ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ساس رات نند کے سر میں تیل سے مالش کرتی۔ وہ خاص تیل تھا جس سے نند کے بال لمبے ہوتے تھے۔ وہ ساس کسی کو نہ لگانے دیتی، پر مجھے حیرانی ہوتی جب نند مجھ سے رو کر کہتی، بھابھی پلیز میرے بال کاٹ دو۔ میں منع کر دیتی کیونکہ اس کے بال بہت خوبصورت تھے، پر ایک دن میں نے اس کے کہنے پر اس کے بال کاٹ دیے۔ یہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں کہ اس کے بال کٹتے ہی اس کے جسم پر 11 مردانہ۔ میرا نام آئلہ ہے۔ میں ایک دور دراز گاؤں میں رہتی تھی۔ ہمارا گاؤں کوئی بہت بڑا تو نہیں تھا، مگر یہاں بہت سی سہولیات موجود تھیں۔ سب سے بڑی بات، یہاں پڑھنے کے لیے اسکول تھا، جو کہ ہمارے گاؤں کے وڈیرے نے ہی بنوایا تھا۔ میں نے بھی اسی اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی۔ میرا بچپن باپ کے سائے کے بنا ہی گزرا تھا۔ میرے بابا میرے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ میری اماں نے کھیتوں میں مزدوری کر کے مجھے اور میری بہن کو پالا تھا۔ ہمارے ساتھ ہماری دادی بھی رہتی تھی۔ یہ وقت ہم سب کے لیے بہت مشکل تھا۔ میں اکثر بابا کو یاد کر کے چھپ چھپ کر رویا کرتی تھی۔ دادی بھی اکثر انہیں یاد کرتی تھی، مگر امی کے سامنے ایسا بالکل نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ امی کو کوئی بھی دکھ پہنچے۔ میری امی ایک باہمت خاتون تھیں۔ انہوں نے زندگی میں بہت مشکلات دیکھی تھیں اور ان سے اکیلے ہی لڑتی تھیں۔ وہ میری آئیڈیل تھیں۔ جب اماں کام پر جاتیں تو میری دادی ہی پیچھے سے گھر کی دیکھ بھال کرتیں اور اماں کے آنے سے پہلے ہی کھانا وغیرہ بنا کر رکھ دیتیں۔ میری اماں اور دادی کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ کوئی انہیں دیکھ کر کہہ نہیں پاتا تھا کہ یہ ساس اور بہو ہیں۔ اکثر لوگ انہیں ماں اور بیٹی ہی سمجھتے تھے۔ میری دادی اور امی نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھڑی رہی تھیں۔ میں اور میری بہن گاؤں کے ایک اسکول میں پڑھتی تھی۔ میں 7ویں جماعت میں تھی اور میری بہن دوسری جماعت میں۔ جب وہ 4 مہینے کی تھی تبھی میرے ابو کی وفات ہو گئی تھی۔ انہیں کھیتوں میں کام کرتے ہوئے سانپ نے کاٹ لیا تھا اور زہر پورے جسم میں تیزی سے پھیل گیا اور موقع پر ہی ان کی جان چلی گئی۔ مجھے ابو کا چہرہ دھندلا دھندلا سا یاد تھا۔ ہم دونوں بہنیں صبح صبح اسکول جاتیں اور دوپہر کو جب واپس آتیں تو دادی نے اماں کے لیے ایک ٹفن میں کھانا باندھ کر رکھا ہوتا تھا۔ میں بستہ رکھ کر پہلے امی کو وہ دے کر آتی اور پھر گھر جا کر کھانا کھاتی۔ کھانا اور نماز سے فارغ ہو کر دادی ہم دونوں کو سلا دیتی تھیں۔ شام کو جب ہم اٹھتے تو امی گھر آ چکی ہوتی تھی۔ ہم اٹھ کر اپنا ہوم ورک کرتے اور پھر شام کا کھانا کھانے سے پہلے کچھ دیر کے لیے باہر کھیلنے چلی جایا کرتی تھیں۔ واپس آ کر کھانا کھاتی اور فوراً سے سو جاتی۔ بس یہی ہمارا سالوں سے معمول رہا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ میں نے میٹرک مکمل کر لیا تھا۔ اب میں کچھ وقت کے لیے فارغ تھی۔ اب میں گلیوں میں کھیلنے کی بجائے گھر پر رہتی تھی۔ دادی نے مجھے گاؤں کی ایک عورت کے پاس سلائی کڑھائی سکھانے بھیج دیا۔ میں اپنی پڑوسن لڑکی زرینہ کے ساتھ روز سلائی سیکھنے اس عورت کے گھر چلی جاتی تھی۔ میں نے کچھ ہی دن میں کافی کچھ سیکھ لیا تھا۔ میں نے سلائی کا کورس مکمل کیا تو انہی دنوں کالج میں داخلے اوپن ہو گئے۔ میں نے امی کے ساتھ جا کر اپنا ایڈمیشن کروایا۔ میں کالج جانے لگی۔ کالج تھوڑا دور تھا تو امی نے مجھے تانگا لگوا دیا۔ میں روز تانگے پر آتی جاتی تھی۔ میرا پہلا سال تو بہت اچھا گزرا تھا، مگر دوسرے سال نہ جانے کب اور کس طرح میں گاؤں کے وڈیرے کے خاندان کے ایک عیاش انسان کی نظروں میں آ گئی۔ وہ وڈیرے کے بھائی کا بڑا بیٹا تھا۔ وہ حد درجے عیاش تھا۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس کے باپ نے ہمیشہ اسے گاؤں سے دور رکھا تھا، مگر وہ جب بھی وہاں آتا کوئی نہ کوئی الٹی حرکت ضرور کرتا تھا۔ تبھی گاؤں کا کوئی شخص اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ میں ایک دن کالج سے آ رہی تھی تو وہ میرے راستے میں کھڑا تھا۔ میں اس کی اس درجہ جرت پر حیران رہ گئی، مگر میں اس وقت کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ ابھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا یا کچھ کہتا، تبھی وہاں ایک گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے ایک نوجوان باہر آیا۔ اس نے روایتی وڈیروں والا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کئی گارڈز بھی تھے۔ وہ اس آدمی کے سامنے آیا اور پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنی خبیث مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ نہیں، بس یہ چڑیا پسند آ گئی ہے۔
उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं शर्म से जमीन में गड़ के रह गई। तब इस गाड़ी वाले लड़के ने एक पल को मेरी तरफ देखा और फिर अगले ही लम्हे एक जोर का मुक्का इस शख्स की नाक पर दे मारा, जिसकी वजह से वो कराह कर पेट के बल नीचे गिर गया। इस लड़के ने तांगे वाले को वहां से जल्दी जाने का इशारा किया। मैं भी जल्दी से तांगे पर बैठ गई। जाते जाते सिर्फ एक पल को रुककर मैंने इन दोनों की तरफ देखा। वो शख्स अपनी नाक पकड़े खड़ा था और वो लड़का गुस्से से उसे कुछ कह रहा था। तभी उसने किसी ख्याल से चौंक कर मेरी तरफ देखा, मगर मैंने फौरन से रुख मोड़ लिया। गांव की हदूद में दाखिल होकर मैंने तांगे वाले चाचा से पूछा कि ये दोनों कौन थे, तो उन्होंने बताया कि जिसने हमारा रास्ता रोका था वो वडेरे का अयाश भतीजा था और दूसरा गाड़ी वाला लड़का इसका कज़न यानी वडेरे का इकलौता बेटा था। वो काफ़ी अच्छा और पढ़ा लिखा इंसान है। इसका नाम काशान है और वो अपने ख़ानदान के बाकी मर्दों से काफ़ी अलग है और दूसरों की इज्जत करता है, इंसानों को इंसान समझता है। मैंने घर के पास उतरते हुए तांगे वाले से कहा कि आप अम्मी को इस सब के बारे में कुछ मत कहना, ना ही किसी और से जिक्र करना इस बात का, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अम्मी किसी भी वजह से परेशान हो। मेरी बात सुनकर उन्होंने सर हिला दिया। अगले दिन मैं कॉलेज जाते हुए थोड़ा डर भी रही थी, मगर फिर इस लड़के को याद करके एकदम मुस्कुरा उठी। मैं अम्मी और दादी को बताकर कॉलेज के लिए निकल आई। तांगे वाले चचा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अम्मी जल्दी से जाकर तांगे पर बैठ गई। रास्ते में मैंने देखा वो शख्स दूर दूर तक कहीं नहीं था, मगर जब इस दिन मैं वापस आई तो कल वाली जगह वडेरे का बेटा काशान वहीं बैठा था। उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा और फिर ये रोज़ होने लगा। वो मेरी कॉलेज से वापसी पर वहीं मौजूद होता था। इस तरह 1 साल गुजर गया। वो ना तो मेरी तरफ देखता था और ना ही कुछ कहता था, बस वहाँ बैठा रहता था। एक दिन तांगे वाले चाचा ने मुझे बताया कि जब मैं आपको घर छोड़कर वापस आता हूँ तो साहब यहाँ नहीं होते, वो सिर्फ आपके लिए आते हैं। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई कि वो मेरे लिए वहाँ क्यों आता है, मगर इस वक्त इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था। मैंने कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यूनी शहर में थी, इसलिए मुझे हॉस्टल में रहना था, क्योंकि रोज़ रोज़ शहर से यहाँ आना नामुमकिन था। इसलिए अम्मी ने मुझे हॉस्टल में भिजवा दिया। मैं कुछ दिन तो थोड़ा रोती रही, मगर फिर हॉस्टल की आदी हो गई। अभी तक हमारी प्रॉपर क्लासेस शुरू नहीं हुई थी। 1 हफ्ता हो गया था मुझे यहाँ आए हुए। इस दिन पूरी यूनी में सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात हो रही थी कि एक न्यू प्रोफेसर आए हैं। लड़कियां उनके बारे में बातें कर रही थीं। सब कह रहे थे वो बहुत यंग और हैंडसम हैं। लड़कियों की बातें सुनकर मुझे भी तजस्सुस होने लगा कि आखिर कौन है वो हमारी इंग्लिश के न्यू टीचर अपॉइंट हुए थे। अब जबकि क्लासेस बाकायदगी से स्टार्ट हो गई थीं तो सबको टाइम पर क्लास में पहुंचने की जल्दी थी। मुसलसल 2 पीरियड्स के बाद 1 पीरियड फ्री था और उसके बाद इंग्लिश की क्लास थी। मैं क्लास में दाखिल होकर सामने वाली सीट पर ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद न्यू प्रोफेसर अंदर दाखिल हुए तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो तो काशान था। वो भी मुझे वहाँ देखकर एक लम्हे को चौंक गया। फिर पूरे लेक्चर में उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं जैसे ही पीरियड लेकर बाहर निकलने लगी तो उसने मुझे रोक लिया और कहा, आप मुझसे मेरे रूम में मिलिएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या बात करेगा, मगर जब मैं उसके रूम में गई तो वो बहुत इज्जत से पेश आया और बोला, मैं नहीं जानता था कि आप इसी यूनी में हैं। इनफैक्ट मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि हमारे गांव की कोई लड़की इस तरह शहर आकर यूनी में पढ़ेगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये फैसला किया। मैंने कहा शुक्रिया। मेरी अम्मी और दादी का इस सब में बहुत बड़ा रोल है। बाबा के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही हमारा ख्याल रखा। वो चाहती हैं कि हम दोनों बहनें बहुत ज़्यादा पढ़ें और मुआशरे में एक अच्छा मुकाम बनाएं। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला कि फिर तो यकीनन मैं एक बार इनसे मिलना चाहूँगा। मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर, आपको यकीनन इनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने कज़न की इस दिन वाली हरकत पर सख्त शर्मिंदा हूँ। मैंने उसी दिन उसके बारे में अपने चाचू से बात कर ली थी। उन्होंने उसे यहाँ से दूर भिजवा दिया।
آپ شاید ہمیں روایتی جاگیردار سمجھ رہی ہوں گی، مگر ایسا کچھ نہیں۔ دراصل ہمارے خاندان کی باغ میرے بابا کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں اور اس طرح کی عیاشیوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے میرے کزن کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے ہم اس سے زیادہ تر گاؤں سے دور ہی رکھتے ہیں۔ میں نے ان کی بات سن کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک نرم دل اور اچھے کردار کا شخص تھا۔ اس نے کبھی کلاس میں یا یونی میں بھی ایسی کوئی حرکت نہ کی جس کی وجہ سے میرے کردار پر کوئی داغ آئے۔ میں جب گاؤں گئی تو اس کے اصرار پر ایک دن اسے امی اور دادی سے بھی ملوا دیا۔ کافی سلجھا ہوا انسان تھا وہ، اس لیے وہ دونوں کو پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا۔ کبھی کبھی وہ دادی کے پاس ملنے آ جاتا تھا اور گھنٹوں ان سے باتیں بھی کرتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ یہ سب تبھی ممکن ہوتا جب وہ چھٹی پر گھر آتا تھا۔ شہر میں اس کا ایک اپارٹمنٹ تھا، وہ وہیں رہتا تھا۔ میرے فرسٹ سیمسٹر کے امتحان ختم ہوئے تو میں لمبی چھٹیوں پر گھر آ گئی۔ اسی دوران دوسرے گاؤں سے میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ میں جس عورت کے پاس سلائی سیکھنے جاتی تھی، یہ انہی کے دور کے رشتے دار تھے۔ چھوٹی سی فیملی تھی، ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا اور اس کی فیملی بھی کافی اچھی تھی۔ اس لیے امی نے مجھ سے میری مرضی پوچھ کر اور دادی سے مشورہ کر کے ہاں کر دی۔ منگنی کے بعد میں صرف ایک بار اس سے ملی تھی۔ وہ اچھا تھا اور مجھے پسند آیا تھا۔ میں اس رشتے پر خوش تھی۔ میری چھٹیاں ختم ہوئیں تو میں واپس ہاسٹل آ گئی اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ 1 سال کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ اس دوران کاشان سے میری بہت کم بات چیت ہوئی۔ بس وہ مجھے تبھی نظر آتے تھے جب ہمارا پیریڈ ہوتا تھا۔ ایک دن میں لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ بھی وہاں آ گئے۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں جب ان کے ساتھ ان کے آفس میں گئی تو انہوں نے کہا، دیکھو تم مجھے غلط بالکل مت سمجھنا، نہ ہی میں کوئی ایسا ویسا انسان ہوں۔ میں سیدھے سیدھے بات کروں گا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے پوری عزت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اتنے اچانک اظہار پر میں شاک ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں اور اس سے کیا کہوں۔ اور ایک اچھا انسان تھا، اچھے کردار کا حامل تھا۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتی، مگر میری منگنی ہو چکی ہے جو کہ میری ماں نے بہت ارمانوں سے کی ہے، اور میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی جس کی وجہ سے میری ماں کا دل دکھے۔ انہوں نے ساری زندگی ہمارا بہت خیال رکھا اور ہم پر اپنی جوانی وار دی۔ اب میں انہیں اپنی وجہ سے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس نے یونی بھی چھوڑ دی اور گاؤں میں بھی نہیں نظر آیا۔ اس دن کے بعد سے وہ مجھے دوبارہ نہیں دکھا۔ خیر، میں بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ میں پورے دل و جان سے اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ دادی اکثر اس کے بارے میں پوچھا کرتی تھی۔ میں نے دادی سے کہہ دیا کہ وہ یونٹ چھوڑ کر جا چکا ہے اور اب میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے۔ میرا ماسٹرز جیسے ہی مکمل ہوا، امی اور دادی نے میری شادی کی تاریخ پکی کر دی اور تیاریاں شروع کر دی۔ میں اس سب سے خوش تھی، مگر دور کہیں دل کے اندر ایک پھانس چبھ گئی تھی۔ میری شادی میری دادی اور امی نے اپنی استطاعت کے مطابق بہت اچھے سے کی۔ دادی شادی میں کاشان کو بھی بلانا چاہتی تھی، مگر اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ میں رخصت ہو کر دوسرے گاؤں چلی آئی۔ یہ شہر سے کافی قریب تھا۔ میرے سسرال والے بہت اچھے تھے۔ میرا شوہر بھی بہت خیال رکھنے والا تھا، جس کی وجہ سے میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن اور خوش تھی۔ ایک دن جب میں میکے گئی تو مجھے دادی نے بتایا کہ وہ ملک چھوڑ کر جا چکا ہے۔ میں دادی کی بات سن کر چپ ہو کر رہ گئی۔ میں نے دل میں سوچا، شاید اس نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا سوچ لیا ہو، اور یہی ہم دونوں کے لیے اچھا تھا۔ میرے سسرال میں دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ میرا دیور شہر میں پڑھائی کے سلسلے میں رہتا تھا۔ میں اور میری نند گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اکثر گاؤں میں بنی نہر پر چلے جاتے تھے۔ وہ ہم دونوں کی پسندیدہ جگہ تھی۔ میری شادی کو وقت ہو گیا تھا، مگر ابھی تک میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مگر میری ساس نے کبھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ ہی میرے شوہر نے کوئی تانا دیا۔ زندگی بہت ہی سکون سے گزر رہی تھی۔ تبھی ایک دن اچانک سے ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میری ساس اس کے بالوں میں روز ایک تیل لگا کر مالش کرتی تھی،
जिसकी वजह से मेरी नंद के बाल बहुत खूबसूरत होते जा रहे थे। मैंने एक दिन वो तेल लगाना चाहा तो सास ने सख्ती से मना कर दिया। मैं हैरान तो बहुत हुई मगर कुछ बोली नहीं। मेरी नंद को अपने लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो अक्सर मुझे कहती थी कि ये बाल काट दें, मगर मैं उसकी ये बात नहीं सुनती थी। मगर उसके मुसलसल इसरार पर मैंने उसकी बात मान ली और जैसे ही मैंने उसके बाल काटे तो इसके जिस्म पर 11 मर्दाना बाल उगाए, जिसकी वजह से वो एकदम रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सास फौरन वहाँ आ गई और उसके बालों को देखकर बोली, तुमने ये क्या किया? अब ये तकलीफ में आ गई है। मैंने हैरत से सास की तरफ देखा। मैं नहीं जानती थी कि मेरी नंद को कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है, मगर मेरी सास ये बात जानती थी। तभी वो खास जड़ी बूटियों से बना वो तेल बिला नागा रोज उसके सर पर लगाती थी। ये तेल उन्होंने गांव की एक पहाड़ी पर रहने वाली एक हकीम औरत से बनवाया था, जो बहुत अरसे से गांव के लोगों का इलाज इसी तरह जड़ी बूटियों के साथ करती थी। मेरी नंद के जिस्म पर जो 11 मर्दाना बाल उगाए थे, उसकी वजह से उसके जिस्म पर काफ़ी दाने बनने लगे थे। इन दानों में पीप बनती जा रही थी और साथ साथ खारिश भी हो रही थी और वो बेचारी बहुत तकलीफ में रहने लगी थी। तभी एक दिन सास उसे उस औरत के पास ले गई। मैं भी उनके साथ गई। इस औरत ने बताया कि अब जड़ी बूटियों से इसका इलाज मुमकिन नहीं, आप फौरी तौर पर इसे शहर के अस्पताल ले जाएं। मगर मेरी सास को शहरी डॉक्टरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। किसी न किसी तरह उन्हें मनाकर मैं शहर ले गई। वहां जाते ही डॉक्टर्स ने उसे चेक किया और बताया कि इसका जख्म काफ़ी ख़राब हो चुका है। इसके जिस्म पर इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हमें फौरी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर से कहा, आपको जो मुनासिब लगता है आप करें। कई घंटे गुजर गए। डॉक्टर्स इसके इलाज में मसरूफ़ थे। नर्स भी हमें कुछ नहीं बता रही थी। हम काफ़ी परेशान थे। मैंने अपने शौहर को कॉल करके बताया और अस्पताल पहुंचने का कहा, तो वो शाम तक अस्पताल पहुंच गया। हम सब नंद के लिए परेशान थे और दुआ कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद डॉक्टर्स बाहर आए और बताया कि हमने इनका इलाज तो कर दिया, मगर ये काफ़ी नहीं है, हमें इनकी टांग काटनी पड़ेगी क्योंकि ये दाने बहुत तेज़ी से पूरे जिस्म पर फैल रहे हैं। अगर टांग ना काटी तो इनका पूरा जिस्म इस इन्फेक्शन का शिकार हो जाएगा। इनकी बात सुनकर मेरी सास बुरी तरह रोने लगी। मैंने उन्हें तसल्ली दी और फिर मेरे शौहर ने उन्हें इस ऑपरेशन की इजाज़त दे दी। हम सब के लिए नंद की सेहतयाबी बहुत अहम थी। शाम तक बाकी लोग भी पहुंच गए तो मैं शौहर के कहने पर सास को ज़बरदस्ती लेकर गांव आ गई। मेरे शौहर ने मुझे और सास को गांव तक छोड़ा और ख़ुद वापस अस्पताल चले गए। मैंने घर आकर सास को ज़बरदस्ती खाना खिलाया और सुला दिया क्योंकि उनकी हालत सुबह से रोने की वजह से बहुत ख़राब हो रही थी। अब उन्हें आराम की अशद ज़रूरत थी। मैं उन्हें सुलाकर खुद बाहर आ गई। सोचने लगी कि ये सब कैसे हो गया। थोड़ी देर बाद शौहर ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि उसका ऑपरेशन शुरू हो गया है, मगर तुम अम्मी को अभी कुछ मत बताना वरना वो मज़ीद परेशान हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। वो इस वक्त सो रही हैं। अगले कई घंटे मैंने टेंशन में गुजारे। फिर एक जानलेवा इंतज़ार के बाद शौहर ने कॉल की और बताया कि डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके टांग काट दी है। अभी वो उसे कुछ देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे, तुम अम्मी को बता दो। मैंने अम्मी को उठाया, चाय बना कर दी और फिर उन्हें धीरे धीरे बता दिया कि उसका ऑपरेशन हो गया है। वो ये सुनकर रोने लगी और बोली, आयला, मेरी बेटी बिना टांग के कैसे जिएगी और उससे कौन शादी करेगा, कौन अपनाएगा उसे। मैंने कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। फिर मैं काफ़ी देर उन्हें तसल्ली देती रही। अगली सुबह मैं सास को लेकर अस्पताल चली गई। वो नंद को देखकर बुरी तरह रो दी। हम सब ने उन्हें बहुत तसल्ली दी। 2 दिन बाद हम उसे घर ले आए। हम सब उसकी देखभाल करते थे, जिसकी वजह से वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। अम्मी और दादी भी एक बार आकर उससे मिल कर गई थीं। अभी हम सब नंद की देखभाल में ही मसरूफ़ थे कि मेरी ज़िंदगी तूफ़ान की जद में आ गई। एक दिन अचानक ही मेरे शौहर की तबीयत बिगड़ी तो हम उन्हें जल्दी से अस्पताल ले गए, मगर बहुत देर हो गई थी। मेरे शौहर को हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से हम सब उन्हें खो चुके थे। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी हंसती बसती ज़िंदगी उजड़ गई है।
मेरा देवर ही मेरी सास को और नंद को संभाल रहा था। मैं तो अपने होश में नहीं थी। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत हौसला दिया, मगर मेरा गम बहुत बड़ा था। दिन ब दिन मेरी सेहत गिरती जा रही थी। इद्दत ख़त्म होने के बाद अम्मी ने मुझे कहा कि तुम गांव के स्कूल में नौकरी कर लो, इस तरह तुम्हारा दिल बहल जाएगा। अम्मी की बात मेरे दिल को लगी। मैंने स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। मैं अम्मी के साथ वापस आ तो गई थी, मगर मैं उन लोगों से गाफिल बिल्कुल नहीं थी। मैं अपनी साबका सास और नंद से मिलने अक्सर जाया करती थी। वो दोनों बहुत अच्छी थीं। मेरी पूरी शादीशुदा ज़िंदगी में उन्होंने मुझसे कभी कोई बुरा सलूक नहीं किया था। स्कूल में नौकरी करते मुझे साल होने वाला था, तभी मेरी प्यारी दादी जान हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चली गईं। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर ये एक साथ मुश्किलात ने मेरे ही घर का रास्ता क्यों कर देख लिया। आखिर क्यों? इन्हीं दिनों मैंने एक बहुत लंबे अरसे बाद काशान को फिर देखा। वो मेरी शादी के बाद बाहर मुल्क चला गया था और अब सालों बाद लौटा था। मैंने उसे स्कूल से वापसी पर देखा। मैं अपनी धुन में सोचों में गुम चलती जा रही थी कि एकदम किसी से टकरा गई। मैंने सर उठाकर देखा तो वो काशान था। मैं कितने अरसे बाद उसे देख रही थी। वो बिल्कुल पहले की तरह था, बस उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी उतर आई थी। यूं लगता था कि गोया वक्त उसे छू कर गुजरा ही ना हो। वो भी मुझे यूं अचानक सरे रात देखकर हैरान रह गया। फिर बोला, आओ कुछ बात करते हैं। वो दोपहर का वक्त था, आसपास कोई नहीं था। वो मुझे छाँव में ले गया और बोला, तुम स्कूल में जॉब क्यों कर रही हो? मैंने कहा, पूरा दिन फारिग रहती हूँ इसलिए। अब वैसे भी अम्मी की उम्र हो रही है, ज़मीन पर मज़ारे काम तो करते हैं, मगर मैं खुद भी कुछ करना चाहती हूँ। और तुम्हारा शौहर? मैंने उसके सवाल पर दुख से उसकी तरफ देखा और कहा कि वो नहीं रहा। एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से हमने उसे खो दिया। इस बात को काफ़ी वक्त हो गया है। मेरी बात सुनकर उसने कहा, अफसोस हुआ। मैं तो समझ रहा था तुम काफ़ी खुश होगी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो बहुत अच्छा शख्स था, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मुश्किलात से लड़ रही हो। मैंने कहा, हाँ, वो बहुत अच्छा हमसफ़र था, मगर हमारा साथ बहुत कम अरसे के लिए लिखा गया और शायद इसमें अल्लाह की ही कोई मसलहत हो। फिर उसने बताया कि उसकी अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से यूं अचानक आना पड़ा। मैंने उससे पूछा कि अकेले आए हो या बीवी के साथ, तो उसने कहा, मैंने शादी नहीं की अब तक। मैंने उसकी बात पर हैरानी से पूछा कि क्यों? तो चंद पल वो मेरी तरफ देखता रहा और फिर बोला, तुम्हारे बाद कोई दिल को लगी ही नहीं कि जिसे ज़िंदगी का साथी बनाता। मैं उसकी बात सुनकर उसे नजरें चुरा गई। मैं उसके सच्चे जज्बों की कदर करती थी और ये भी जानती थी कि वो इज्जत से मुझे अपनाना चाहता था, मगर मैं अपनी माँ का सर अपनी वजह से कभी नहीं झुका सकती थी। खैर, हम काफ़ी देर वहाँ बैठे बातें करते रहे। उसने मुझे कहा, मैंने अम्मा को तुम्हारे बारे में बताया था, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? मैंने उसकी तरफ देखा तो वो आंखों में उम्मीद लिए मुझे देख रहा था। मैंने उसकी सांस को तोड़ना मुनासिब नहीं समझा और कहा, ठीक है, कल स्कूल से वापसी पर मैं आपके साथ चलूँगी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैंने घर जाकर रात के खाने के बाद अम्मी से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी और कहा कि उससे कहना मुझसे भी मिलने आए। मैंने कहा, ठीक है, मैं कह दूँगी। अगले दिन मैं स्कूल से छुट्टी हो जाने के बाद उसके पास आ गई। वो पहले ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं उसके साथ उसके घर चली गई। मैं पहली बार इस हवेली में आई थी। उसकी अम्मी से मिलकर मैं काफ़ी खुश हुई। वो रवायती जागीरदारनियों से बिल्कुल ही अलग थीं। इस दिन उन्होंने मुझसे काफ़ी बातें की। वापसी पर मैंने काशान को अम्मी का पैगाम दिया और उसे दादी का भी बताया। वो दादी के बारे में सुनकर दुखी हो गया। इसके और दादी के बीच बहुत बनती थी। वो अगली ही शाम अम्मी से मिलने आ गया। उसके आने से घर में एक रौनक सी लग गई थी। अब वो अक्सर हमारे घर आ जाता था। एक दिन उसने मुझे कहा, आयला, मैंने सालों पहले तुमसे एक बात कही थी, अगर तुम्हें याद हो तो वही बात आज फिर मैं तुमसे करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, काशान, आप जानते हैं अच्छे से कि मैं शादीशुदा रह चुकी हूँ। तो इसने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बताओ, क्या मैं तुम्हें हमसफ़र के तौर पर कबूल हूँ? मैंने उसकी बात पर चंद लम्हे उसकी तरफ देखा और फिर इस बात में सर हिला दिया। मेरी हाँ सुनकर वो खुशी से सरशार वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद वो अपने माँ बाप के साथ पूरी शान और शौकत के साथ मेरा हाथ मांगने आ गया।
अम्मी ने एक नज़र मेरी खुशी से जगमगाते चेहरे को देखा और फिर हाँ कर दी। मेरी उंगली में मंगनी की अंगूठी पहनाते हुए उसने धीरे से मेरे कान में कहा, तैयार रहना, मैं जल्द ही तुम्हें अपनी शहजादी बनाकर ले जाऊंगा। मैंने कहा, क्यों, घोड़े पर लेने आएंगे मुझे क्या? तो उन्होंने कहा, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। और फिर उसने अपना कहा पूरा कर दिखाया। वो वाकई घोड़े पर बारात लेकर आया और मुझे किसी शहजादी की तरह अपने साथ ले गया। मैंने उसकी संगत में खुशियों भरी दुनिया में एक बार फिर कदम रख दिया था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।